हाय एवरीवन, आज हम महाराष्ट्र सेट का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 23 मार्च 2023 को हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, फैमिली इज ए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। यस, it is a statement said by William J. Goode, and reason is as saying it is expected to transfer sexual rights to the spouses in family. फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि रीज़न ये है। सो हेयर आंसर इज नॉट, आंसर इज ट्रू and reason assertion is true and reason also is true, but it's not correct explanation of assertion. So answer would be both A are true but R is not the correct explanation of A. Question number 2. Which of the following gases protect us from harmful sun rays? Nitrogen, ozone, oxygen, carbon dioxide. So कौन सी ऐसी गैस है जो हमें हार्मफुल सन रेज से बचाती हैं? So here correct answer should be ozone. You know, ozone layer has protects the harmful UV sun rays. And Ozone Day is celebrated on 16th September. Question number 3. Which one of the following is not an indicator of Human Development Index? So, Human Development Index is given by Mehboob ul Haq and Amartya Sen. Human Development Index is given by Mehboob ul Haq. So, it is based on 3 indicators, and here we have to find out which is not. Life expectancy, yes, it is included. Education, yes. Level of urbanization or national per capita income. So option C is the correct answer because it's not the indicator of Human Development Index. When it was developed, it was I guess it was in 1998. Which view among the following is the oldest? Cyclic view of social change, linear view of social change, evolutionary model of social change, dialectical model of social change. So the very first view of social change was evolutionary model of social change, which is given by Herbert Spencer, Darwin, and Karl Marx followed from them linear model of social change. No, Karl Marx was following dialectic model of social. Auguste Comte followed evolutionary model of social and Durkheim. Question number 5. Most of the states in India have their distinct language. This is an example of social stratification, social difference, hierarchy, inequality. So here hierarchy and inequality is not uh, like it's very big. So here what would be if most of the states in India have their distinct language? So here would be social difference, not social stratification. Social stratification include differences plus hierarchy. Question number 6. According to Max Weber, class as a dimension of economic power can be understood through control over mode of production, market situation and the life chances, possession of property, having a salaried job. So मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो क्लास है वो एज ए डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मैक्स वेबर की लैंग्वेज में क्लास को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं? कंट्रोल ओवर मोड ऑफ प्रोटेक्शन, market situation and the life chances. So here the keyword is market situation and the life chances. Correct answer would be B. And what the definition of Karl Marx? So Karl Marx said that the who owns the means of production are the classes. More who involved in mode of production, control over mode of production, that they are the classes. Question number 7. Whose work on stigma led to emergence of disability studies?
Alfred Schultz, G.H. Smith, Talcott Parsons, Irving Goffman. So here correct answer should be Irving Goffman. Irving Goffman has wrote a book called The Presentation of Self in Everyday Life, in which he described the concept of stigma. He said that stigma are two types: discredited stigma and there the another one I forgot at this point. So these are the so stigma was explained by Erving Goffman's work. Question number 8. As per census 2011, the number of disabled person in the highest in which of the following age group? So ये क्वेश्चन सेंसस के अकॉर्डिंग है. इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस एज ग्रुप के पर्सन जो है वो सबसे ज़्यादा डिसेबल्ड है. 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. I guess if I keep this question in doubt, this is new for me. I will let you know uh, in the next video. Question number 9 is asking who introduced the concept of globalization? Ronald Robertson, Martin Elbro, Zygmunt Bauman, Eric Swingro. So here correct answer should be Ronald Robertson. Question number 10 is asking the only tribe which claims to be vegetarian is Toda, Gond, Bhil, Santhal. So I'll let you know in the next video. Question number 11. The communities that are engaged in internet to carry on public discussion substantially with sufficient human feeling in the cyberspace is described as cyber community, virtual community, epistemic community, temporal community. So here the answer is virtual communities. When agrarian stratification is discussed, we generally refer to dominant caste, control over land, land alienation, rural poverty. When agrarian stratification is discussed, we generally refer to dominant caste, control over land, land alienation, no, rural poverty, no, control over land. So, uh, uh, yeah, I will keep it in doubt again. I have to look the answer key, what the answer key says. Question number 13. There are two statements. One is assertion and second is reason. So we have to find out which is the correct one and what is the relation in between. Usually development project lead to ecological degradation. आमतौर पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन करते हैं क्योंकि इंडिया नीड्स बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू बिकम सुपर पावर. अब यहाँ पे जो रीज़न है वो करेक्ट हम डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के लिए कारण बनते हैं क्योंकि इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है. यस इट इज़ ट्रू बट इज़ नॉट रिलेटेड to become superpower, but yes, so we will go with option number B. Both are correct but R is not the correct explanation of A. Question number 14. Habitus does not focus on our ways of acting, feeling, thinking, rejection of belief and values. तो हैबिटस कॉन्सेप्ट जो पियर बोर्डियू ने दिया था उसके अकॉर्डिंग वो क्या फोकस नहीं करता. एक्टिंग, feeling, thinking, rejection of belief and values. So here correct answer should be rejection of beliefs and values. Which theory of exchange as a structuralist method of studying kinship relation is known as? कौन सी ऐसी theory है एज ए स्ट्रक्चरल मेथड जो किनशिप रिलेशन को स्टडी करती है? अलायंस थ्योरी, ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी, डायरेक्ट एक्सचेंज थ्योरी, डिसेंट थ्योरी.
सो है करेक्ट आंसर शुड बी अलायंस थियरी। अलायंस थियरी के बारे में लुई डूमो ने बताया है। लेवी स्ट्रॉस ने अलायंस थियरी दी थी, जिसका यूज लुई डूमो ने किया था। Which one of the following statement about gender is not correct? Is a normative disposition. Gender is not. It is a normative disposition. Is a cultural construct. Construct is a natural disposition. It helps understand inequalities. So option D तो बिल्कुल नहीं होगा. So ये normative disposition which is not correct. Cultural constructs yes. Is a natural disposition. It helps understand inequalities yes. So यहाँ पे क्वेश्चन है जो इज ए नेचुरल डिस्पोजिशन, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, डिले बिफोर चेंज इन वन पार्ट ऑफ सोसाइटी प्रोड्यूस रीअलाइनमेंट ऑफ द अदर पार्ट्स इज नॉन एज कल्चरल एडजस्टमेंट, एक्लचरेशन, जनरेशन गैप, कल्चरल लैग। तो उसमें बता रहा है कि डिले बिफोर चेंज इन वन पार्ट ऑफ सोसाइटी, किसी एक सोसाइटी किसी एक पार्ट में जो डिले होता है वो दूसरे पार्ट में गैप आ जाता है, उसको क्या कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज और कल्चरल चेंज में जो गैप आ जाता है उसको कहते हैं कल्चरल लैग। ये फेमस कॉन्सेप्ट दिया था विलियम एफ और ऑगबर्न ने। Which of the following cannot be a hidden curriculum of education from the point of view of capitalist society? A curriculum that produces subservient workforce, that produces more integrated and rebellious workforce, that produces passive and obedient workforce, that encourages to accept authority without question. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हिडन करिकुलम होता है एजुकेशन का, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज का हिडन करिकुलम है वो क्या नहीं है इसमें से। दैट प्रोड्यूस मोर इंटीग्रेटेड एंड रिबेलियस वर्कफोर्स, दैट प्रोड्यूस पैसिव एंड ओबीडियंट वर्कफोर्स, दैट एनकरेज टू एक्सेप्ट अथॉरिटी विदाउट क्वेश्चन। ये तो करता है दैट क्वेश्चन दैट एनकरेज टू एक्सेप्ट अथॉरिटी विदाउट क्वेश्चन यस। ए करिकुलम दैट प्रोड्यूस सबसर्विएंट वर्कफोर्स, that produce passive and obedient workforce. So here answer should be option B. Question number 19. What was the population of elderly in India as per census 2011? I have to look again up the answer key of this question. Question number 20. Political subculture are rarely homogeneous क्योंकि देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द पॉलिटिकली कॉन्शियस एक्शन ऑफ सोसाइटी। जो पॉलिटिकल सब कल्चर्स होते हैं वो होमोजेनस नहीं होते हैं, रेयर होते हैं, होमोजेनस होते हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट अलग अलग होता है। यस, सो हियर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Who opines that laws are actually codified mores? Emil Durkheim, W. G. Sumner, G. Arnold, B. Malinowski. Laws are codified mores. अगर हम देखा जाए कीवर्ड से तो ये ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, बट वी हैव टू लुक एट आंसर की वंस। Question number 22. Which of the following states does not have wetlands? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें वाटर वेटलैंड्स नहीं है? Again, have to check the answer key. Question number 23 is asking, who among the following held the view marriage is rooted in the family rather than family is in marriage? This is the famous statement given by E.A. Westermarck. So we have solved
So first we clarified the question we have not answered. So here um, question number 10 is the correct answer should be Todas. The only tribe which claims to be vegetarian is Toda. Before it, yes, question number 8. As per Census 2011, the number of disabled person is the highest in which of the following age group? So here correct answer should be option number 8, age group 10 to 19. Question number 19. Yes, here the correct answer should be that option number B, that produces more integrated and rebellious workforce. ऐसा हिडन कैरिकुलम में नहीं होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में. क्वेश्चन नंबर 19 के सारे ऑप्शंस गलत हैं. आंसर की मैंने चेक कर ली, इसमें बताया कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 20. पॉलिटिकल सब कल्चर रेयरली होमोजेनस बिकॉज there are significant differences among the political section of societies. So here correct answer should be A. Question number 21. Yes, answer would be W.G. Sundar. Question number 22. Which of the following states does not have water wetland? So here correct answer should be हरियाणा. हरियाणा में कोई भी वाटर वेटलैंड नहीं है. Who among the following held view? इसका आंसर हो गया था ई वेस्टरमार्क. बहुत फेमस कोटेशन है जो हर एग्जाम में आता रहता है. क्वेश्चन नंबर 24. थारावाड़ इज ए काइंड ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली कंसिप्यूज रूल ऑफ रेजिडेंस ए कम्युनिटी. सो ए करेक्ट आंसर इज ए काइंड ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली जो कि केरला में पाई जाती है. कस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड फोकवेज, मोरेज, लॉज, वैल्यूज. कस्टम को और भी क्या कहते हैं? फोकवेज कहते हैं. Yes. So here correct answer should be option number A. For Marx, the mode of production refers to a combination of means of production and forces of production, a combination of means of production and relations of production, dynamics of relations of production, only the dynamics of means of production. So option C और D तो बिल्कुल नहीं होगा. ऑप्शन A में means of production and forces of production नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी. बट आंसर की में ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 27. व्हेन more and more individual undermine marriage for procreation, their orientation to sexuality can be called. जब बहुत से ज़्यादा लोग शादी करते हैं प्रोक्रिएशन के लिए तो उनकी सेक्सुअलिटी को क्या कहते हैं? हेट्रोनॉर्मिटी, सेम सेक्स सेक्सुअलिटी, हाइपर सेक्सुअलिटी, प्लास्टिक. तो ये करेक्ट आंसर होगी हेट्रोनॉर्मेटिविटी. यहाँ पे करेक्ट आंसर शुड बी प्लास्टिक सेक्सुअलिटी दिया हुआ है. अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शादी को प्रोक्रिएशन के लिए नहीं मानते हैं तो उनका सेक्सुअलिटी क्या होता है? तो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी आएगा. आंसर की में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया हुआ उस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 28. हुज नेम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. ये नया क्वेश्चन है. ऑप्शन ए डेनिस मैकवेल, डेनियल लर्नर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एवरेट एम रॉजर्स. सो करेक्ट आंसर शुड बी डेनियल लर्नर. Question number 29. Subculture refers to ethnocentrism, homogeneity of values, counterculture, common lifestyle.
तो सब कल्चर क्या होता है? एथ्रोसेंट्रिज्म जो डब्ल्यू.जे. सिमलर का कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है कि लोग अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं दूसरों के कल्चर के कंपैरिजन में और अपने लोगों के लिए ज़्यादा काम करते हैं, जबकि सब कल्चर एक कल्चर का छोटा पार्ट होता है। तो इसमें सब कल्चर क्या होता है? होमोजेनिटी ऑफ वैल्यूज, काउंटर कल्चर, ये तो अपोजिट ही हो जाता है, कॉमन लाइफस्टाइल। सो हियर करेक्ट आंसर शुड बी काउंटर कल्चर। सब कल्चर को काउंटर कल्चर से भी डिनोट करते हैं। Question number 30. Which one of the following is not the source of identity? Ethnicity, attire, sexual orientation, class. इसमें से क्या है जो एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी नहीं होता है? एथनिसिटी, यस, ये हमारे आइडेंटिटी को डिनोट करता है। अटायर, कपड़े पहनना। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यस। क्लास, सो हियर करेक्ट आंसर शुड बी अटायर। अटायर में कोई कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, ये हमारी आइडेंटिटी को डिनोट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 31. पावर इज इंटीमेटली लिंक्ड टू नॉलेज. हु सेड दिस? बोर्डियू, गिडन्स, फूको, बेक. फेमस कोटेशन इज सेड बाय फूको। बोर्डियू का कॉन्सेप्ट हैबिटस फील्ड डोक्सा। एंथनी गिडन्स ने थर्ड वे करके बुक लिखी थी और उन्होंने प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के बारे में बताया था। कैपिटलिज्म के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सर्विलांस, मिलिट्री पावर एंड देयर आर टू मोर। तो एंथनी गिडन्स का बहुत रोल है। एंथनी गिडन्स, फूको, बोर्डियू ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर माने जाते हैं। Question number 32. Agency reflects in a student challenging caste-based discrimination in university, a youth stealing money for drugs, daughter demanding dowry as her right, mother-in-law's power over her daughter-in-law. तो यहाँ पे एजेंसी कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है? तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। एजेंसी मीन्स क्या होता है कि जब किसी भी पर्सन को कोई भी डिसीजन या जो भी उनके राइट है उसके वो काम कर सके, अपना डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे यूथ स्टीलिंग मनी फॉर ड्रग, ये कोई एजेंसी मतलब ये तो अनएथिकल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड है। Eviction of slum dwellers forces them to live in precarious condition. Reason here, they are not properly rehabilitated after eviction. Eviction क्या जो होता है, जो स्वयं eviction of slum dwellers forces them to live in precarious condition. जो स्लम ड्वेलर्स का उनका एक जगह से दूसरी जगह स्टाफ चेंज करना होता है, वो उनको प्रिकेरियस कंडीशन में रहने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से इविक्शन के बाद रिहेबिलिट नहीं किया जाता। तो ये रीज़न सही लग रहा है और इनका असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखते हैं आंसर की क्या कहता है। आंसर की अकॉर्डिंग यस, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 34. Every economy has 3 sectors. Which sector has witnessed marked growth in the last 25 years? हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, इनमें से कौन से सेक्टर में पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वेलफेयर। तो जो तीसरा सेक्टर है टर्सरी सेक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है पिछले 25 सालों में। क्यों? क्योंकि जब से ये इंफॉर्मेशन एज आया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, तब से सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी गई है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है। प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, बट वो उसमें प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता, जबकि सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। Question number 35 is asking, what term is used to describe the gaps between the living condition of subgroups
and those enjoyed by the majority of the population. उस टर्म को क्या कहते हैं जब एक गैप देखा जाता है कि कुछ लोगों के लिविंग कंडीशन और जो लोग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो इंजॉय करती है उनके बीच में जो होता है उसको क्या डिनोट किया जाता है। तो इन्फोर्स पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये करेक्ट आंसर शुड बी एब्सोल्यूट। द आंसर की is एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कल्चर ऑफ पॉवर्टी तो ये कॉन्सेप्ट ऑस्कर लिविस ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है ये ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उनके बीच में एक कल्चर बन जाता है तो ये पॉवर्टी ट्रेडिशन बन जाती है, इसी को उन्होंने कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहा है। Question number 36 is asking who argued that nature and dynamics of Indian agrarian economy can't be understood without connecting it to the imperialism। किसने कहा है कि जो इंडियन एग्रेरियन का नेचर और डायनामिक्स है इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी का, उसको समझे बिना हम बिना बिना इम्पीरियलिज्म को समझे और उसको कनेक्ट किए हम इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी के नेचर डायनामिक्स को नहीं समझ सकते। तो ये कहा है HLV एंड आई बानार्जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Question number 37. What is the researcher's relationship to the respondent in post-structuralism? रिसर्चर का रिलेशनशिप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में रिस्पोंडेंट के साथ क्या होता है? इक्वल, सुपीरियर, इंफीरियर, इक्वल एंड डायलॉजिकल। सो है करेक्ट आंसर इज शुड बी करेक्ट आंसर इज equal and dialogical. Question number 13. In which report the United Nations introduced the term sustainable development first time? कौन सी रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था? रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, द लिमिट्स टू ग्रोथ, आवर कॉमन फ्यूचर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर शुड बी आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39। एम्पिरिकल रिसर्च इज नॉट रिसर्च बेस्ड ऑन। एम्पिरिकल रिसर्च किस रिसर्च पे बेस्ड नहीं होता है? ऑप्शन ए एविडेंस कलेक्टेड बाय सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फील्ड, आइडियाज जनरेटेड थ्रू थियोराइजिंग एंड कंजेक्चर, स्टडीज दैट आर रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट टू द सोशल वर्क, ऑन साइट डेटाबेस गैदर्ड बाय द रिसर्चर। So here correct answer should be option number B. Ideas generated through theorizing and conjecture वो empirical research नहीं होता है। Question number 40. Which of the following is characteristics of qualitative research? Qualitative research की क्या characteristics होते हैं? Objective, cause effect linkage, value free, subjective। तो देखो कॉज इफेक्ट लिंकेज तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि क्वांटिटेटिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकता है, तो उसमें क्या है क्या वैल्यू फ्री नहीं, ये नहीं होता। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू इन्वॉल्व होती है। यस इट इज सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें पूछा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो करेक्ट आंसर शुड बी सब डी, ऑप्शन डी विच इज सब्जेक्टिव। 41. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर कौन कौन से हैं? मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोडिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए, मोड। क्वेश्चन नंबर 42 इज आस्किंग एथनोग्राफी इम्प्लाइज। एथनोग्राफी में क्या होता है? पीपल आर मीनिंग मेकर्स, ऑब्जेक्टिव स्टडी, रिसर्च ऑन पीपल, सोशियोमेट्री इज द स्टडी टूल। एथनोग्राफी इम्प्लाइज पीपल आर मीनिंग मेकर, ऑब्जेक्टिव स्टडी तो नहीं होता है, रिसर्च ऑन पीपल यस इट इज हैपन। सो हियर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन
A. People are making meaning makers. क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 में सेंट्रल दिया हुआ, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, मीन डेविएशन, पियर्सन कोफिशिएंट, मीडियन एंड टी टेस्ट। सेंट्रल टेंडेंसी सबसे सिंपल को मैच करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन, यस, ए का थ्री कौन से दो ऑप्शन में है। फिर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन होता है, कोरिलेशन होता है पियर्सन कोफिशिएंट, सी का टू यस, सी का टू भी दोनों ऑप्शन में आ रहा है। फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यस, ये टी टेस्ट होता है, डी इक्वल टू 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 43, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। मैच कर लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन, फिर डिस्पर्सन होता है बी इक्वल टू 1, मीन डेविएशन, कोरिलेशन होता है पार्सन्स कोफिशिएंट, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज द क्रूशियल फीचर ऑफ गुड सैंपल। एक गुड सैंपल का फीचर क्या होता है। स्मॉल साइज, रिप्रेजेंटेटिवनेस, इजीली अप्रोचेबल, इजी स्टडी। तो करेक्ट आंसर वुड बी रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी जो सैंपल होता है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द विलेज मेंधालेखा इन Maharashtra is known for its strong local self-government, tribal art, empowerment of women, agricultural development। एक विलेज है मेंधालेखा महाराष्ट्र में, वो किस लिए जाना जाता है। फिर करेक्ट आंसर शुड बी स्ट्रॉन्ग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। According to Toffler, the wake of the arrival of the third wave human social relation and the institution are experiencing। टॉफलर के अकॉर्डिंग जो थर्ड वेव ह्यूमन सोशल रिलेशंस का अराइवल और इंस्टीट्यूशन का क्या एक्सपीरियंस करता है। कंसोलिडेशन इन देयर सोशल रिलेशन, डिसोरिएंटेशन इन देयर सोशल रिलेशन, कंसोलिडेशन ऑफ देयर प्राइमोर्डियल रिलेशन, कंसोलिडेशन ऑफ देयर सेकुलर रिलेशन। So here correct answer is disorientation to their social relations. Question number 47 is asking which of the following is a new social movement। कौन कौन से न्यू सोशल मूवमेंट है। द बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, एलजीबीटी। न्यू सोशल मूवमेंट जो अभी रिसेंट के डिकेड में होने शुरू हुए हैं। तो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट ये तो बहुत पहले से हो रहा है। पेजेंट मूवमेंट ये तो न्यू सोशल मूवमेंट नहीं है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी नहीं। तो करेक्ट आंसर शुड बी LGBTQ movement is the new social movement. Question number 48. Through social media, false things are proven as reliable and true by the powerful section. This is termed ad. सोशल मीडिया के द्वारा जो भी झूठी खबरें हैं उनको ऐसे रिलायबल प्रूव किया जाता है, प्रूव किया जाता है जो पावरफुल सेक्शन के द्वारा। तो इसको क्या टर्म देते हैं। मीडिया मैनेजमेंट, साइबर मैनिपुलेशन, मिसरिप्रेजेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक करेक्ट आंसर वुड बी misrepresentation. Yes, it is a misrepresentation. 49 question is asking information revolution led to the following change। जो information revolution है उससे क्या बदलाव आया है। literary skills to mechanical skills, decentralization of work away from factory, predominance of manufacturing sector, Fordist organization। So here correct answer should be decentralization of work away from factories. Question number 50 is asking which of the following act of violence has yet not been formulated into a law। इसमें से कौन सा वायलेंस एक्ट है जो अभी तक लॉ में नहीं आया है। ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस, डाउरी प्रैक्टिसेस। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस ये तो आ गया है 2013 विशाखा गाइडलाइंस। डोमेस्टिक वायलेंस यस इट्स लॉ बाय 2005 एक्ट। ऑनर किलिंग का डाउरी प्रैक्टिस yet it is
कन्वर्टेड इनटू लॉ बाय 1961 एक्ट। ऑनर किलिंग का अभी तक कोई एक्ट नहीं आया है। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑनर किलिंग। सो आज हम ये 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।